بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام معلم مسجد صابرہ حکیم حضرت مولانا امتیاز محمدی صاحب دامت برکاتہ اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے جس دن سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات کو بنائی، ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہم ہیں، سورج نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، تارے نکلتے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنا بڑا نظام ہے. بارش کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. تو اللہ رب العزت نے جب سے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک نظام بنایا ہے جس کو سال، مہینہ، ہفتہ اور دن، یہ جو ترتیب ہے کہ دنوں سے مل کر کے مہینہ ہفتہ بنتا ہے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پھر جو ہے تو انہی دنوں سے مل کر مہینہ بنتا ہے، 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، ایک مہینہ بنتا ہے، 12 مہینوں سے مل کر ایک سال بنتا ہے نا. 100 سال ہوتے ہیں، ایک صدی ہو جاتی ہے، 100 سال ایک صدی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جس وقت سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور اس دنیا پر جو ہے تو پورا نظام چلایا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بھی بنایا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بول دیا، فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی آیت ہے، جو آیت کریمہ میں نے اس وقت ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کتنی ہے؟ چنانچہ دنیا کی ہر جنتری کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، چاہے وہ عیسوی جنتری ہو، چاہے وہ ہجری جنتری ہے نا. ہم لوگ گنتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر. کتنے ہو گئے؟ 12. تو یہ انگریزی مہینے، اس کے کون سے مہینے؟ یہ انگریزی مہینے، یہ عیسائیوں کا سال ہے نا. وہ لوگ اس طرح گنتے ہیں، آپ اسکول میں جاتے ہوں گے وہاں بھی ایسے ہی گنتے ہوں گے ہے نا. تو یہ انگریزوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو مہینوں کے نام بتایا وہ الگ ہے، اس کو ہجری سال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارا جو سب سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے انگریزی کے اندر شروع ہوتا ہے جنوری، شروع کہاں سے ہوتا؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل. تو ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو ابھی چل رہا ہے نا، محرم الحرام کہتے ہیں. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. کیا یہ اسلامی سال کا پہلا؟ یہ بھی 12 ہے. کتنے ہے؟ محرم الحرام. یہ ہر بچے کو یاد رہنا چاہیے ہے نا. اگلی بار میں جب آؤں گا تو پوچھوں گا 12 مہینوں کے نام. محرم الحرام سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ دوسرا مہینہ ہے سفر کا. سفر
सफरुल मुज़फ्फर कहते हैं उसको, सफर याद रखना, मुहर्रम सफर। उसके बाद तीसरा महीना रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी, रबीउल आखिर भी बोलते हैं, है ना, जुमादिल अव्वल, जुमादिल सानी, फिर उसके बाद रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, इस तरह 12 महीने कितने हैं, है ना। ये इस्लामी साल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिजरी साल, है ना। तो सबसे पहला इस्लामी साल का जो सबसे पहला महीना है उसको मुहर्रमुल हराम कहते हैं। हमारे साल की इब्तिदा इस महीने से होती है ना। और ये जो मुबारक महीना है मुहर्रमुल हराम, अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही मुहतरम महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहर, अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने मिनहा अर्बअतुल हुरुम, कि इन 12 महीनों में से 4 महीने एहतराम वाले, कैसे है, अदब वाले, एहतराम वाले महीने, है ना। एहतराम, अब उन 4 महीने कौन से है, ये मुहर्रम, है ना, ज़िलक़ादा से शुरू होते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, ये 3, और एक महीना रजब का महीना। कौन सा महीना, ये 4 महीने अदब और एहतराम वाले, इनको अशहुरे हुरुम कहा जाता है। क्या कहते हैं, अशहुरे हुरुम। आप जब ये मदरसे से फारिग होंगे और जब आप आलिम बनने के लिए जाएंगे वहाँ आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी, है ना। इनको अशहुरे हुरुम कहते हैं, अदब और एहतराम वाले। तो इन 4 महीनों में से ये महीना भी अदब और एहतराम वाला। हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक के बाद, इसके बाद रमज़ानुल मुबारक के बाद जो सबसे अफजल तरीन महीना है वो मुहर्रम का महीना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना को शहरुल्लाह कहा, यानी अल्लाह ताला का महीना है। क्या है ये, हाँ। अब इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर हमें और आपको क्या करना है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के अंदर फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, क्या फरमाया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों के अंदर तुम अपनी जानों पर जुल्म मत करो, अपने आप के ऊपर जुल्म मत करो। इसका क्या मतलब, अपने ऊपर जुल्म मत करो, इसका मतलब ही नहीं कि अपने आप को मारो मत, अपनी जानों पर जुल्म करो का मतलब यह है कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ। जब आदमी गुनाह करता है गोया कि वो अपने आप के ऊपर जुल्म करता है, क्या करता है, जुल्म करता है। तो ये देखो ये मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर जो कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमें करना है, क्या करना है, कुछ काम है जिनको हमें करना है, और कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमें नहीं करना है, क्या करना है ना। लेकिन जो करने वाले काम है वो बहुत थोड़े हैं, 3-4 काम है। और जो नहीं करने वाले काम है जिनसे हमें और आपको बचना है, जिनका करना गुनाह है, क्या है, और जिनको करना हराम है, अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं। तो ये हुर्मत वाला महीना है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तो नेकियों का भाव बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी तरकारी बिकती है, फल फ्रूट बिकने आते हैं, आम बिकने आता है, केला बिकने आता है। हम देखते हैं ना, कभी उसका भाव कम रहता, कभी ज्यादा रहता। कभी केला 20 रुपया दर्जन बिकता, कभी 60 रुपया दर्जन, कभी 70 रुपया दर्जन बिकता, तो भाव कम ज्यादा होता ना। तो इसी तरह जो हम नेक अमाल करते हैं, जो हम नेकी करते हैं, वो अगर किसी और महीने के अंदर करेंगे उसका कभी सवाब मिलेगा। 1 नेकी करेंगे 10 नेकी मिलेंगी, 20 नेकी मिलेंगी, 100 नेकी मिलेंगी। लेकिन इन महीने के, इस महीने के अंदर मुहर्रमुल हराम, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, ये ऐसे महीने हैं अल्लाह ताला के नजदीक कि अगर इन महीनों के अंदर हम कोई नेक काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहिसाब अजर सवाब अता करेंगे, नेकी का भाव बढ़ जाता है। क्या होता, पहले 1 नेकी करेंगे 10 नेकी मिलेंगी, लेकिन मुहर्रम के अंदर हम कोई नेक अमल करेंगे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, कोई नेक अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 गुना उससे ज्यादा बड़ा चढ़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर सवाब देंगे। तो ये जो महीना है मुहर्रमुल हराम का, इन महीने के अंदर हमें चंद नेक अमाल करने, क्या करने हैं। हाँ, मुहर्रम की जो 10 तारीख होती है, देखो आज है 7 तारीख, क्या तारीख है, 7 तारीख है, आज जुमरात का दिन है ना। जुमा का दिन रहेगा 8 तारीख रहेगी मुहर्रम की, और शनीचर के दिन मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख रहेगी। फिर इतवार का दिन जब आएगा मुहर्रम की 10 तारीख रहेगी, क्या रहेगी,
تو محرم کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. تیز آواز سے بولیں گے, کیا بولتے ہیں؟ محرم کی 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ کہتے ہیں, ہے نا. یہ دن جو ہے یوم عاشورہ, یہ بڑی فضیلت والا دن ہے. کیسا دن ہے؟ فضیلت والا, معمولی دن نہیں ہے نا. اور اس کی اہمیت یہ بہت پرانے زمانے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ہے. ہم اور آپ جب سوچتے ہیں, جب جیسے محرم کا مہینہ آیا تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی؟ تازیاں بنے گی, ہے نا, شربت بنے گا, شربت بٹے گا, سب ماتم کریں گے, ڈھول بجائیں گے. اور یہ محرم کے اعمال نہیں ہے نا, یہ بدعات اور خرافات ہے. محرم کا جو یہ 10 تاریخ کا دن ہے, 10 ذی الحجہ کا دن ہے, اس کی فضیلت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کچھ اور ہے. اور کچھ لوگوں نے جو کہ غلط راستے پر چل پڑے, جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا, انہوں نے یہ ساری من گھڑت چیزیں انہوں نے ایجاد کیا. ابھی میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم وہ چیز سنیں گے جو کرنے والی ہے. کیا ہے نا, وہ دورہ. تو کیمرے والے کے بازو میں جا کے کھڑے ہو گئے, جلدی جا, 5 منٹ وہاں کھڑے رہے, ہاتھ باندھ, ہاں بس وہاں کھڑے رہے, بس. ہاں سب ادھر دیکھیں گے, جو سوئے گا اس کو میں کھڑا کر دوں, غور سے سننے گا. تو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خالی کھانے پکانے میں رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ میٹھا میٹھا شربت بنائیں گے, بانٹیں گے, کھچڑا بنے گا, ملیدہ بنے گا, کھانے پینے کے لیے. ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو محرم کی 10 تاریخ, جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے, ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ یوم عاشورہ کا روزہ. اب ایک روزہ نہیں رکھنا ہے, اب اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھنا ہے. 9-10 تاریخ کو رکھنا ہے یا 10 یا 11 تاریخ کو رکھنا ہے, یہ بھی بتاؤں. یا تو 9 یا تو 10 تاریخ کو رکھنا ہے, یا تو 10 اور 11 تاریخ کو رکھنا ہے نا. جیسے ابھی 10 تاریخ آئیں گی اتوار کے دن, کب آئے گی؟ تو یا تو ہمیں 9-10 شنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا, یا تو اتوار اور پیر کے دن. تیز سے بولو نا, ہے نا, شنیچر اتوار کو رکھنا ہے یا تو اتوار اور پیر کو رکھنا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ اس دن کو جب ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش, ان کی ولادت جو ہے تو مکہ شہر میں ہوئی تھی. کہاں پر ہوئی تھی؟ مکہ شہر کے اندر ہوئی تھی, ہے نا. بیٹا میں سب کو دیکھ رہا ہوں, کوئی کسی کی طرف اشارہ نہیں کرے, ہے نا. ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, پیدائش کہاں پر ہوئی تھی؟ جو میں سوال پوچھوں گا اس کا تیز آواز سے جواب دینا. کہاں پر ہوئی تھی؟ مکہ نام کے شہر میں ہوئی تھی, ہے نا. سعودی عرب کے اندر حج کرنے جاتے نا, عمرہ کرنے, حج کرنے وہیں پر جاتے, مکہ شہر کے اندر, مکہ اور مدینہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, کیا بنایا, ہے نا, نبوت کا منصب اور مقام عطا فرمایا 40 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. تو 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے آپ مکہ شہر میں ہی رہے, لیکن وہاں کے لوگوں نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. کیا کیا؟ ستایا, پریشان کیا. اور آپ جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے, کلمے کی دعوت کہ ایک اللہ کو, اس زمانے کے لوگ جو ہے نا وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتی تراش کے اس کو سامنے سجدہ کرتے تھے, اس کو اپنا خدا مانتے تھے. لیکن ہم اور آپ جو ہے تو مسلمان ہیں, کیا ہے, ہم جو ہے تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. کتنے کو؟ اسی بات کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. اب وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کو خدا بولتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پتھروں کو خدا بولتے. ویسے ماحول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں یہ خدا نہیں ہے, یہ تو تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے.
ये कैसे खुदा हो सकती है? अल्लाह ताला की जात तो एक है, वाहदहू ला शरीक है। इसकी दावत दी तो लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पसंद नहीं आई, लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं किया, आपकी दावत को कबूल नहीं किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। और जो लोग भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लिया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल कर लिया करते थे, आपके ऊपर ईमान ले आया करते थे, उनको मुसलमान कहते थे, सहाबा कहते थे, तो उनको भी सताते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सताते थे, परेशान करते थे, सहाबा को भी सताते थे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस मक्का शहर को छोड़ दिया। क्या कर दिया? वहां से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो दूसरे शहर में तशरीफ लाए। उस शहर का नाम है मदीना। क्या नाम है? मदीना। हज करने जाते ना, मक्का मदीना, कहाँ जाते? हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो मदीना मुनव्वरा वहाँ तशरीफ लाए, तो वहाँ पर कुछ यहूदी लोग थे। कौन लोग थे? हाँ, उन लोगों को देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को एक दिन का रोजा रखते। क्या देखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम इस दिन रोजा क्यों रखते हो, तुम्हारे इस दिन के रोजा रखने की क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि जो हमारे नबी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी क़यादत के अंदर अल्लाह ताला ने हम लोगों को फिरौन के जुल्म और सितम से नजात दी थी। फिरौन का वाक़या मालूम है ना? मालूम है? क्या मालूम? फिरौन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, सही नहीं, मिस्र का था। कहाँ का था वो? मिस्र का रहने वाला था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह तफसील से बताऊंगा, बहुत सारी बातें। तो एक जालिम बादशाह था वो। क्या था? उसके जमाने में जो अल्लाह ताला के नबी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और उनकी जो कौम थी उनको बनी इसराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के जमाने में जो यहूदी लोग हैं वो वही बनी इसराइल की औलाद है। तो उस वक्त उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे थे उनका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम था उनका? हाँ, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल फरमाई थी, उसका नाम था तौरात। क्या नाम था उसका? जिस तरह हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब नाजिल फरमाई, उसका नाम है कुरान मजीद। क्या नाम है? आप लोग जो पढ़ते हैं ना कुरान, ये किताब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, वैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई। तो उनकी जो कौम थी बनी इसराइल, उस कौम को फिरौन नाम के जालिम बादशाह ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। क्या बनाया था? हाँ, उनसे मजदूरी लिया करता था और उनको जानवरों की तरह उनसे खेतों में काम दिया जाता था, मजदूरी के काम करवाए जाते थे और उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था। उनके घरों के अंदर अगर कोई लड़का पैदा होता था, क्या पैदा होता था? लड़का पैदा होता था और पुलिस को पता लग जाता था कि आज इस बनी इसराइल के घर के अंदर लड़का पैदा हो गया, उसको कत्ल कर डालते थे। क्या करते थे? बच्चा पैदा हुआ उसको कत्ल कर डालते थे, और लड़की रहती थी उसको छोड़ देते थे। तो इस तरह बहुत जुल्म किया फिरौन ने। तो उसके जुल्म और सितम से जो है तो परेशान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने भी हिजरत की। क्या की? अभी मैंने आपको बताया ना, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, मदीना तशरीफ लाए, उसी तरह हर नबी ने हिजरत की है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रातों रात निकले और जो है तो समंदर को पार किया। अब फिरौन को पता लग गया कि ये हमारे गुलाम थे, हमारे नौकर थे, हमारे काम किया करते थे, ये तो रातों रात निकल गए शहर छोड़कर। तो ये अपनी फौज लेकर उनका उसने पीछा किया। क्या किया? घोड़ा लेकर, पूरा लश्कर फौज पाटा लेकर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम का, बनी इसराइल का पीछा किया। अल्लाह ताला ने जो है तो इनको बचाया। किस तरह बचाया कि रास्ते में एक समंदर आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम परेशान हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर लाठी मारी। क्या मारी? हाँ, बहुत तफसीली वाक़या मैं बताने जाऊंगा तो 5 बज जाए या 6 बज जाए। तो लाठी मारी उन्होंने, वहाँ 12 रास्ते बन गए समंदर के। कितने रास्ते बने?
पूरा पानी जो है तो पहाड़ की तरह एक तरफ सिमट कर खड़ा हो गया, रास्ता बना, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी बनी इसराइल, वो उस रास्ते से पार हो गई समंदर के पार, है ना। अब फिरौन आया, उसका लश्कर आया, उसने देखा कि ये कौम तो पार हो गई समंदर, तो उसने अपनी कौम से भी कहा कि जिस तरह ये लोग पार हुए अपन भी पार होते। तो उसने अपना घोड़ा और अपनी सवारी समंदर के अंदर जैसे घुसाई, अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, वो पूरा पानी दोबारा जैसे बह रहा था वैसे बहने लगा, और पूरा जो है तो फिरौन का लश्कर, उसकी सवारी सब समंदर में डूब कर मर गए। क्या हो गए? डूब कर सब मर गए, हलाक हो गए। तो वो जिस दिन वो हलाक हुआ फिरौन, उस दिन भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। उस दिन भी क्या थी? अभी अल्लाह ताला ने इस कौम को, बनी इसराइल को जो है तो एक बहुत बड़े जालिम बादशाह से, बहुत खतरनाक बादशाह से अल्लाह ताला ने उनको नजात अता फरमाई थी। तो उसकी खुशी के अंदर वो लोग जो है तो 10 तारीख का रोजा उस जमाने से रखते चले आ रहे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि तुम रोजा क्यों रखते हो, उन्होंने ये वजह बताई। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हकदार हूँ, कि मैं तुमसे ज्यादा हकदार हूँ कि मैं इस दिन रोजा रखूं, कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई हजरत मूसा को फिरौन के जुल्म और सितम से नजात दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया, मुसलमानों को, कि तुम भी हर साल मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहूंगा तो 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा, 9 तारीख का भी रखूंगा, 10 तारीख का भी रोजा रखूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकिन उसी साल आप जो है तो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 तारीख का रोजा रख नहीं पाए, लेकिन आपने ख्वाहिश जाहिर की। इसीलिए उलमा ने कहा है कि यौम आशूरा को जो है तो 2 दिनों का रोजा रखना है। कितने दिनों का रखना है? मैंने आपको बताया ना, 9, 10 या 11 तारीख का रोजा रखना है। अभी इतवार को दिन आ रही है, तो शनिचर, इतवार और या तो इतवार और पीर का रोजा रखना है। अब इसके जो है तो बड़ा अजर और सवाब है। क्या है? एक दिन का हम रोजा रखेंगे ना, शनिचर या इतवार, अल्लाह ताला क्या सवाब देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर as-sanata allati qablahu। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर as-sanata allati qablahu, कि यौम आशूरा का जो एक दिन का रोजा रखेगा, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए कहता हूँ कि अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर देंगे। क्या होंगे? है ना, साल, पूरा साल गुजरा, 365 दिन गुजरा, न जाने हमने क्या क्या गुनाह करे होंगे, क्या क्या बुराई की होंगी, नमाज छोड़ी होंगी, किसी को गाली दी होगी, माँ बाप को सताया होगा, है ना, उस्ताद को सताया होगा, कुरान करीम की बेहुरमती की होगी, साल भर न जाने हमसे कितने गुनाह होंगे। लेकिन अगर हम एक दिन का रोजा रख लेंगे, 10 तारीख का, मुहर्रम की 10 तारीख, अल्लाह ताला जो है तो पूरे साल के गुनाहों को माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? ये करने का काम है। यौम आशूरा के दिन हमें और आपको क्या करना है? कितने दिन का रखना है? 2 दिन का। कौन कौन रखेगा रोजा? है ना, माशाअल्लाह, तमाम बच्चे रोजा रखेंगे, है ना। ये रोजा बस हाथ नीचे कर लो। जैसे हम रमजान का रोजा रखते हैं ना, रमजान का रोजा फर्ज है। क्या है बेटा? हाँ, तो जब रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था, रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था, तो यही रोजा मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा ही फर्ज था। पहले रमजान का रोजा फर्ज नहीं था, है ना। रसूलुल्लाह रमजान का रोजा जो है तो सन 2 हिजरी के अंदर फर्ज हुआ, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए, उसके 2 साल के बाद तकरीबन जो है तो रमजानुल मुबारक का रोजे फर्ज हुए। उससे पहले मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख का जो रोजा था, वो रोजा जो है तो वो फर्ज था। लेकिन जब रमजान का रोजा अल्लाह ताला ने फर्ज किया, 1 महीने का रोजा, तो ये जो मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अल्लाह ताला ने उसको जो है तो नफ्ल करार दिया। लेकिन इस रोजे को फिर भी हमें रखना है। क्या करना है? रोजे को रखना है ना, और ये करने का काम है। क्या है? उस दिन छुट्टी रहेगी, गुनाहों से अपने आप को बचना है। अब नहीं करने वाले काम बहुत सारे, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि मैं आपको
बहुत सारी चीज बताऊंगा। बोला था ना, मुहर्रम का जब महीना आता है तो हम समझते हैं कि आप मुहर्रम आ गए, आप ताजिया बनेंगी। बोला ना मैं अभी, मातम होगा, शरबत बनाएंगे, शरबत बांटेंगे, जुलूस निकालेंगे, शेरवाग दिखेगा, ढोल बजेगी, सब करबला जाएंगे, है ना। ये सब खुराफात है। क्या ये सब खुराफात है। हमें और आपको इन सब चीजों से बचना है। अभी आप लोग छोटे हैं, वरना मैं आपको तफसील से ये सारी बातें अच्छे से समझाता। ये सारे जो है ना गुमराही के काम है। क्या है, ये लोगों ने ईजाद कर ली अपनी तरफ से, मन गलत चीजें हैं, गुनाह के काम है, हराम है। इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। क्या करना है, ना ताजिया बनाना है, और अगर कोई ताजिया बना रहे हैं उसके साथ शरीक भी नहीं होना है, उसका काम भी नहीं करना है, उसको दोस्ती भी नहीं रखना है। ताजिया बन के बैठ गई, देखने भी नहीं जाना है ना। अभी कुछ लोग आपके दोस्त आएंगे आपके पास, चल सबील का चंदा मांग के आते, क्या करते, बोलते होंगे ना, कौन कौन मांग चुका सबील का चंदा, हाथ उठा, कौन कौन मांग चुका, है ना। ये अभी आप कोई आपका दोस्त आकर बोलेगा चल अपन सबील का चंदा मांगने जाएंगे, जो चंदा होगा उसको पैसा जमा होगा अपने पास, उसका शरबत बना के बांटेंगे, नहीं तो उसके पैसे की जो है ना दफ्ती लाएंगे, लकड़ी लाएंगे और ताजिया बनाएंगे। क्या करेंगे, तो ये सब जो है तो गुनाह के काम है। क्या ये गुनाह के काम है ना। इस काम को उलमाए किराम ने मना किया है, हराम है। क्या ये सबील का चंदा मांगना नहीं है, किसी के साथ सबील का चंदा मांगने के लिए जाना नहीं है, शरबत बनाना नहीं है और शरबत बांटना भी नहीं है। और रास्ते में अगर तुमको, जैसे मैंने कहा, रोजा रखना है, 9 तारीख को आप रोजा रहेंगे, 10 तारीख को रोजा रहेंगे, या तो 10 को रोजा रहेंगे, 11 को रोजा रहेंगे। जब कोई आपको बोलेगा ले भैया शरबत पी ले, तो बोलना मेरा रोजा है। क्या बोलने का, रोजा। ये सब बोलने का खतरनाक बात तो नहीं, तो कुत्ते में दिमाग के ना। तो ये सब गुनाह के काम है बेटा। क्या करना है ना। अब शनिचर के दिन रात में ताजिया निकल जाएंगी, बाहर बैठा देंगे, है ना। अब उसके ऊपर सब खुराफात होंगी, लोग नारियल चढ़ाएंगे, ढोल बजेगी, मातम होगा। ये सारे गुनाह के काम। सबसे पहली बात तो करना भी गुनाह है। क्या ये करना भी गुनाह है। दूसरी बात, इसको देखने भी नहीं जाना है। कोई आपका दोस्त आएगा, चल अम्मा ढोल बज रही है, चल अम्मा पे मातम हो रहा है, देख के आएंगे, चल अम्मा पे शेरबाग निकला है, देख के आएंगे। ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं जाना है ना। कोई आपका दोस्त बोले तो तुम उल्टा उसको समझा देने का, ये सब गुनाह है। क्या ये इस महीने के अंदर गुनाह भी, जैसे मैं आपको बताया ना, अल्लाह ताला एक नेकी करेंगे उसका अजर सवाब अल्लाह ताला 100 गुना से 700 गुना, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका सवाब देंगे। एक नेकी करें, कितनी नेकी, किसी गरीब को हम 1 रुपया देंगे, अल्लाह ताला 700 रुपया, बल्कि उससे ज्यादा पैसा सदका करने का सवाब देंगे। किसी को 1 गिलास पानी पिलाएंगे, आमतौर पर 70 नेकी मिलती, अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा चढ़ाकर उसका सवाब देंगे। इसी तरह मुहर्रम के महीने में अगर हम कोई गुनाह करेंगे, मिसाल के तौर पे नमाज छोड़ दिए, है ना, माँ बाप को सता लिए, मातम देखने चले गए, ताजिया देखने चले गए, है ना, शेरबाग निकला था, शेरबाग देखने चले गए, सबील का चंदा मांगने चले गए, शरबत बनाने के निकामे काम में फंस गए। ये सब गुनाह के काम जब हम करेंगे तो हमारे ऊपर जो है तो गुनाह भी ज्यादा मिलता है। एक गुनाह उसका वबाल भी बहुत ज्यादा रहेगा, अल्लाह साल भर उसकी नौकत रहती है। आप देखो, एक बात गौर करना, जो लोग ये मुहर्रम के महीने में ताजिया बनाते, मेरा इधर देखो, शरबत बांटते, जो खुराफात के अंदर लगे रहते, उनके घर के अंदर देखना मनुसियत तारी रहती। क्या रहती, बरकत आपको नजर नहीं आएंगी, रोशनी नजर, नूर नजर नहीं आता, सब मनुसियत तारी रहती, अंधेरा अंधेरा दिखता। उनकी जिंदगी के अंदर साल भर आफत मुसीबत रहती। और जो कोई अपने आप को इन गुनाहों से बचाता है तो साल भर अल्लाह ताला उसको नूर अता फरमाते। क्या अता फरमाते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर खैर और बरकत रहती है ना। साल भर कोई मुसीबत और परेशानी नहीं आती। शरीयत ने जिस काम से हमें और आपको मना कर दिया, उस काम से हमें आपको बचना है ना। अपना खुद का भी ख्याल रखने का। देखो, मैं आप जो बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। खुद ये काम नहीं करने का और देखते रहने का। हमारी मदरसे का, हमारी मदरसे पढ़ने वाला अगर कोई तालिब इल्म ये सब काम कर रहा है
चुप्पे से आके हाफिज साहब के कान में बोलने का, हजरत हाफिज साहब देखो ये लड़का, ये सबके सामने नहीं, यहाँ से आने बाद क्लास में चिल्लाना, हजरत वो सारा वो शरबत पी रहा था, हजरत वो ताजिया बना रहा था, वो मातम देखने गया था, वो शरबात देखने गया था, ऐसे चिल्ला के नहीं, चुप्पे से आके हाफिज साहब को बोल देना, फिर हाफिज साहब उसको समझा ले, है ना। तो ये सारे गुनाहों के काम है। क्या ये सारे क्या है ना, गुनाहों के काम। कौन कौन करेगा? हाथ उठा। हाँ, ये नहीं करने वाले काम है। क्या ये सारे चीजों से अपने आप को बचाना है। क्या करना है? और किसी से बहस भी नहीं करना है। कोई बोले अच्छा भाई तुम लोग काहे नहीं करते हो, तुम लोग काहे वैसा नहीं करते हो, तो उसको कोई जवाब नहीं देने का। क्या नहीं करने का? किसी के मुंह नहीं लगने का, जवाब नहीं देने का, है ना। ये सारी चीजें करने वाले काम मैं आपको बताया। नमाजों का एहतमाम करना है, रोजा रखना है 9-10 तारीख का, 10 या 11 तारीख का, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, 5 वक्तों की नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात, हम और आप जो है तो मदरसा पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं? मदरसा पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखो, इधर देखेंगे सब मेरी तरफ देखेंगे, सीधे बैठ, अदब से बैठ, अदब से बैठ बेटा, गौर से सुन, बस 10 मिनट में मैं खत्म कर दूं। मदरसा पढ़ते आते हैं, इल्म हासिल करने आते हैं। क्या करने आते हैं? इल्म हासिल करने की भी बहुत फजीलत है ना। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। क्या करते हैं? फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। हम और आप आते हैं ना, तो फरिश्तों के परों पर चल कर आते हैं, उनको नजर नहीं आता। फरिश्ते अपने लिए, हमारे लिए जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, कुरान शरीफ सीखने के लिए आता है, हदीस और दुआ सीखने के लिए आते हैं, उसके लिए जो है तो समंदर की मछलियां उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। क्या करती है? हमारा आप यहाँ बैठ के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं ना, तो समंदर के अंदर जितनी मछलियां है हमारे और आपके लिए दुआ कर रही है। क्या कर रही है? आसमान के अंदर जितने परिंदे उड़ रहे हैं, चिड़िया, कबूतर, सब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिलों के अंदर जितनी चूंटियां रहती है, जितने कीड़े रहते हैं, वो सब भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आसमान के अंदर जितने फरिश्ते हैं, वो सब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये जो बच्चा, जो तालिब इल्म हासिल करने के लिए, कुरान शरीफ सीखने के लिए मस्जिद के अंदर गया, इसकी मग़फ़िरत फरमा। क्या फरमा? गुनाहों को माफ कर, मग़फ़िरत के लिए दुआ, हमारे लिए दुआ हो रही। और हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। सुने होंगे ना? हाँ, तो इस बात का यकीन रखना है, ये किसी आम आदमी की बात नहीं है। ये किसने फरमाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? कौन है? जो कुरान शरीफ को सीखता है और सबसे पहले सीखने वाले का नाम लिया। किसका नाम लिया? जो सीखता है। फिर उसके बाद किसका? हाँ, तो इस बात का यकीन रखना है कि हम इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन लोग हम हैं। सबसे बेहतरीन लोग कौन है? क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम जो है तो कुरान शरीफ को सीखते हैं और सिखाते हैं। तो बड़ी फजीलत है इल्म हासिल करने की, है ना। और इल्म हासिल करना फर्ज है। उलमा और उस्ताद किराम जैसे हम कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माँ बाप को ताज पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे? ताज पहनाएंगे। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। देखो एक सूरज है ना आसमान में, एक ही सूरज है ना, उसकी कितनी रोशनी रहती है, सब चीज नजर आती है, यहाँ से लेके वहां तक सब नजर आएगा, हर चीज नजर आएगी। लेकिन जब ये सूरज डूब जाता है तो अंधेरा होता है कि नहीं? अंधेरे में कुछ दिखता है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन हमारे माँ बाप को ताज पहनाएंगे ना, तो उस ताज की रोशनी भी जो सूरज से ज्यादा तेज होगी, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माँ बाप को भी इज्जत अता फरमाएंगे। और हमारे कहने पर जो शख्स कुरान करीम हिफ्ज़ करेगा, हमारे कहने पर अल्लाह ताला 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे कि जिस पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी। जो लोग जहन्नम में जा चुके, हमारे कहने पर, हमारी सिफारिश पर अल्लाह ताला जहन्नम से बचाकर उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो बताओ अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करे? हमको जहन्नम में डालेंगे?
जब हमारे कहने पर 10 लोग को अल्लाह ताला जहन्नम में से निकाल कर जन्नत में डाल दे तो हमको डालेंगे? तो कुरान हिफ्ज़ करेंगे ना? इल्म हासिल करने आना है। जब अल्लाह ताला इल्म ऐसे ही नहीं देते, अल्लाह ताला इल्म उस्ताद की कदरदानी करना है। क्या करना है? जो आपको पढ़ा रहे हाफिज साहब आपके उस्ताद है ना, जब तक आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे, इनका अदब और एहतराम नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। अभी मैं आपको देखा हाफिज साहब को चिल्लाना पड़ रहा है, ए तू यहाँ बैठ, तू ऐसा मत कर। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मेरे समझ लेना घर के लोग हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, है ना। आप सब हमारे बच्चे हैं। उस्ताद की बात बस उस्ताद की जबान से निकल गई, उस बात को मानना है। किसी तालिब इल्म को उस्ताद ने कह दिया बैठ, घर जाना है, खड़े हो जा, खड़े हो जाना है, ऐसा कर तो वैसा करना है। उस्ताद की बात आप नहीं मानेंगे, उस्ताद का अदब और एहतराम आप नहीं करेंगे, आपको इल्म से कोई नफा नहीं होगा। आप जो कुछ यहाँ पर सीखने आ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं। उस्ताद की अदब करना है। क्या करना है? अदब करना है। तेरा उस्ताद से बात करना है, हाथ बांध कर, सर झुका कर, आहिस्ता आवाज से बात करना है। ये नहीं कि हाफिज साहब ने लकड़ी मारी, क्यों मार रहे मेरे को, क्यों कर रहे ऐसा, ऐसे चिल्लाने, ये बेअदबी है। अल्लाह ताला इल्म नहीं देंगे। आवाज पैड नहीं करना, अपनी आवाज उस्ताद की आवाज से ऊंची नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सब अमाल खत्म कर देते। क्या करते? जितनी नेकी हम करेंगे सब हमारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। उस्ताद की आवाज से ज्यादा ऊंची हमारी आवाज नहीं होनी चाहिए। हाफिज साहब जितनी तेज बोल रहे हैं उससे तेज कोई बच्चा यहाँ बोलेगा। हाफिज साहब ने जिस काम के लिए कह दिया उस काम को करना है। हाफिज साहब ने जिस काम से मना कर दिया उस काम से अपने आप को बच जा, रुक जाना नहीं करना है। जिस काम हाफिज साहब की बात मानेंगे, अदब और एहतराम करेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे तो जो कुछ इल्म आप यहाँ से हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला फिर उसके अंदर बरकत देंगे। क्या करेंगे? अल्लाह ताला बरकत देंगे। बरकत क्या देंगे? उस इल्म से आपको नफा होगा, उस इल्म से आपको फायदा होगा, और उस इल्म की बरकत से अल्लाह ताला आपसे फिर दुनिया के अंदर दीन का काम लेंगे। अभी आप छोटे हैं ना, जब आप बड़े होंगे और आपने उस्ताद की खिदमत की होगी, उनका अदब एहतराम किया होगा, उनकी बात मानी होगी, फिर अल्लाह ताला आपसे दुनिया के अंदर दीन का काम लेंगे। क्या करेंगे? हमारे बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं जो जिनसे अल्लाह ताला ने बड़ा बड़ा काम लिया है ना, उलमा के नाम से। अभी आप छोटे हैं, आपको बात समझ में नहीं आई। जिनसे अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया है, कुरान करीम की खिदमत ली, हदीस की खिदमत ली और दावत और तबलीग की मेहनत की, उन्होंने दुनिया के अंदर दीन फैलाया, अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया। उसी तरह अल्लाह ताला आपसे भी दीन की खिदमत लेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल करेंगे। लेकिन कब होगा ऐसा? जब आप उस्ताद का कहना मानेंगे, उस्ताद का अदब और एहतराम करेंगे। और अगर आप उस्ताद की नाकदरी करेंगे, हाफिज साहब को सताएंगे, हाफिज साहब की बात नहीं मानेंगे और हाफिज साहब से ज्यादा टाइट आवाज में बात करेंगे, हाफिज साहब लकड़ी मार दिए, चिल्ला रहे, मैं मेरे अब्बा को लेके आ रहा ना, मैं मेरी अम्मा को लेके आ रहा ना, मैं ऐसा कर रहा ना, ये सब करेंगे, अल्लाह ताला तुमको बर्बाद जाहिर कर देंगे। क्या करेंगे? जो कुछ तुम इल्म हासिल कर रहे हो वो इल्म भी बर्बाद होगा, तुम्हारे नेक अमाल बर्बाद होंगे। फिर अल्लाह ताला तुमको दीन की कोई खिदमत तुमसे नहीं लेंगे। फिर भी तुम भी जो है तो वही काम करेंगे जो सब कर रहे हैं। लोन चलाएंगे, कोई रथ भरेगा, कोई घड़ी लगाएगा, कोई होटल पे कचहरी करेगा, है ना, कोई होटल पे काम करेगा। ये सब ऐसे काम में अल्लाह ताला लगा देंगे। तो दीन का काम करना चाहते हैं कि होटल में कचहरी करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? बड़े आलिम बनना चाहते हैं ना? आप ये चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपसे दीन का खूब काम ले, खूब खिदमत ले अल्लाह ताला, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो उस्ताद का अदब और एहतराम, मदरसा वक्त पर आना है। क्या करना है? जिस 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 जो वक्त का मदरसा उस वक्त से पहले आना है। 2:30 बजे का मदरसा है, 10 मिनट पहले मदरसे में बच्चा हाजिर, है ना। और जब जाने के लिए कहे हाफिज साहब उस वक्त जाना है। जैसे रहने के लिए मदरसे के अंदर है, वक्त पर आना है, वक्त पर जाना है। मदरसे के यूनिफॉर्म की पाबंदी करना है। हमारे मदरसे का यूनिफॉर्म है सफेद टोपी, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, है ना, उसका एहतमाम करना है। ये देखो रंगीन पैंट नहीं पहन कर आना है, रंगीन टोपी पहन कर नहीं आना है, रंगीन कपड़े में नहीं आना है, अपना पारा लेकर आना है। जिस तरतीब से हाफिज साहब पढ़ाए मदरसे के अंदर जैसे रहने के लिए कहना है, माँ बाप की खिदमत करना है, सबक जितनी मर्तबा याद करने के लिए उतनी मर्तबा याद करना है। सारी बातों का एहतमाम करेंगे, है ना।
अगली बार आऊंगा तो मैं पूछूंगा, है ये सारी बात मैं पूछूंगा। और महीनों के नाम याद रहना चाहिए, जितनी मालूमात थी वो सब याद रहे। और ये भी पूछूंगा किसने रोजा रखा था नहीं रखा था, है ना। और ये भी पूछूंगा कौन कौन शरबत बनाया था, शरबत बांटा था, सवारी देखने गया था, ताजिया डुबाने गया था, है ना। ये सारे कामों से अपने आप को बचाना है। जो करने के काम है वो करना है, और जो नहीं करने वाले काम है उन कामों से अपने आप को बचाना है। करेंगे सब। अल्लाह ताला हम सबको जो है तो अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है तो आप सबको खूब इल्म की दौलत से मालामाल करे, अपने दीन की खिदमत के लिए आपको फूल कबूल करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रदीता व लकल हम्दु बअदा रिज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।